الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. قسم به وعده شیرین من یمت یرنی. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. رسول اللہ نے جس کا نام علی رکھا، جس کی رگوں میں ہاشم بن عبد مناف کا خون روا دوا تھا، وہی خون جو حضرت عبد المطلب اور عبداللہ سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں شرف یاب ہو رہا تھا. علم کا سمندر اسی ذات کے اندر رونما تھا. باب العلم اسد اللہ غالب حیدر کرار، جس کی فکر کی بلندی تک کسی کا طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا تھا. خدا آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ مجھ میں اور تمہارے رسول میں کیا نسبت ہے؟ میں ان کے ساتھ غار حرا میں اس وقت تھا جب وہاں کوئی نہ تھا. میں نے انہیں جبرائیل امین سے گفتگو کرتے دیکھا. میں نے رسول کو راز الہی سے سرشار پایا. ان پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا. شیطان کی وہ چیخ جو وحی الہی نازل ہونے پر نکلی تھی، اسے میں نے اور رسول نہیں سنا تھا. وہ میرے لیے اپنے دہن سے غذا تیار کرتے، اپنے سینے پر سلاتے اور میرے کرتے سیتے تھے. انہوں نے مجھ میں جھوٹ اور کوئی بھی عیب نہ پایا. میں ان کے پیچھے اس طرح سے بھاگتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے. انہوں نے مجھے اس طرح سے غذا علم عطا کی جس طرح پرندہ اپنے بچوں کی منکار میں غذا ڈالتا ہے. میں نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے. اس وقت نور خدا کے ساتھ آگے بڑھا جب سب ٹھہرے ہوئے تھے. میری آواز سب سے دھیمی تھی لیکن میرے قدم سب سے آگے تھے. میں نے آنان حکومت سنبھالی تو اس میں قوت پرواز پیدا ہو گئی اور میں تن تنہا اس میدان میں بازی لے گیا. میرا اسبات پہاڑوں جیسا تھا جنہیں نہ تیز ہوائیں ہلا سکتی تھیں اور نہ تیز آندیاں. نہ کسی کے لیے میرے کردار میں تن و طنز کی گنجائش تھی اور نہ ہی کوئی عیب لگا سکتا تھا. میں قضاء الہی پر راضی ہوں اور اس کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم ہوں. مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ مالی، زیر پاشی جا شکوہ خیبرس، دستوں آجا قسیم کوثرس. من کنت مولا فهذا علی مولا، مولا فهذا علی مولا. اس ذیل میں مشہور تاریخ داں پی کے ہٹی نے فرمایا، جنگ میں مثل برق، حکومت میں عادل، گفتگو میں فصیح، دوستوں کا وفادار، دشمنوں پہ رحم دل. کوئی تلوار نہیں اس کی ذوالفقار کی طرح، کوئی شجی نہیں حیدر کرار کی طرح. مشہور فلاسفر ڈاکٹر ہینلی اسٹپ کا کہنا ہے، علی کو دنیا کی رونقیں اپنا قائل نہیں بنا سکتی تھیں. وہ بہت زیادہ جاننے والے انسان تھے. صرف وہ نہیں جس کو سمجھا جائے، بلکہ وہ سب جاننا جس پر عمل کیا جائے. جارج اورڈیک ایک مشہور تاریخ داں ہے، لکھتا ہے، ظالم کو سزا دلوانا اور مظلوموں کا ان کا حق دینا، ظلم کا دشمن بنے رہنا اور مظلوموں کا دوست بنے رہنا. ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے علی نے اپنی زندگی میں کبھی آرام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی. مشہور ادیب مائیکل نیمی نے لکھا، کوئی تاریخ داں، کوئی مصنف، خواہ کتنا ہی قابل اور لائق ہو، علی کی ذات کو پوری طرح بیان کرنے میں ناکام ہی رہے گا. علی کی ذات میں پنہا خصوصیات کو نہ کسی انسان میں دیکھا گیا اور نہ سنا گیا. آج 1400 سال بعد بھی علی کی تبلیغات پورے جہان انسان کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے. حضرت علی کی اہمیت آج کل کے دور میں کچھ زیادہ بڑھ گئی. امام علی، اگر آپ ان کے کلام کو دیکھیں، نہج البلاغہ،
जिस अंदाज में उन्होंने हमें एक मिसाल कायम करके दी है कि हुकूमत कैसे की जाती है, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत जिसमें आवाम को एक हक देना, लेकिन एक किसी ख़ास एक कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करते हुए और राइट्स के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ रहना, इसकी अगर तालीम अगर हमें कहीं देखनी है तो वो हज़रत अली के गवर्नरशिप में या उनके गवर्नेंस में और उनकी तालीमात में, उनके स्पीचेस में जो नहजुल बलागा में मिलती है। सबसे पहले तो मैं सारे मुस्लिम समाज को हज़रत अली साहब के जन्म दिवस की बधाई देता हूँ और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग उनकी टीचिंग पर, उनकी तालीम को आप माने और इस्लाम की जो स्टडी मैंने की है उसके अनुसार इस्लाम एक अच्छा रिलीजन है। जहाँ तक शिक्षाओं की बात है, मोहब्बत और प्यार की तालीम इस्लाम में हम पाते हैं और जैसा हज़रत अली साहब ने अपनी तालीम में इस बात को बताया है कि इंसान का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि इंसान की गलतियों को माफ़ करें और उनको भूल जाएं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो हम इस बात को याद रखें कि इंसानी जज्बा भुलाने के लिए है, माफ़ करने के लिए है और एक इंसानी वातावरण तैयार करने के लिए है। और जहाँ तक उनके ईमान की बात है, उन्होंने अपने बात में बहुत अच्छी बात को ये रखा है कि इंसान का ईमान अगर कामों के बगैर है तो वो ईमान अपने आप में मुकम्मल नहीं है। ईमान में कामों का होना बहुत ज़रूरी है। हम बाइबल में भी संत याकूब के द्वारा पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा है कि ईमान बगैर कामों के मुर्दा है। इसलिए मानव जाति के लिए यह बहुत ज़रूरी है, या इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब खुदा में ईमान रखते हैं, परमेश्वर में ईमान रखते हैं, तो उस ईमान को पुख्ता करने के लिए वो भले कामों को करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम हज़रत अली साहब की शिक्षाओं को मानें और एक अच्छे समाज की स्थापना करें। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, केवल वो मैं उस इलाके के लोगों के लिए नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा। तो हम जैसे लोगों को आज भी उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये जो प्यार मोहब्बत का पैगाम जिसको हम कह देते हैं, यही इसका दूसरा नाम सूफ़ी इस्लाम है। इसको सुन्नी माने, शिया माने, कोई दूसरा हिंदू माने, ब्राह्मण माने, तो ये है असली पैगाम। हज़रत का जो पैगाम है, तो मैं समझता हूँ कि उनको जो जानकारी इस्लाम की सच्ची और सही जानकारी, उसको स्वीकार करो, ठीक है ना। वो मानवता के लिए है। वो अलग से एक मुसलमान फ़िरका पैदा करना, इस्लाम का एक निकालना और उसमें से हुकूमत अपनी तरफ खींचना, ये सब चीज़ें ये गलत हैं, ठीक है ना। तो ये जो बहुत बड़ी बात है, प्यार मोहब्बत की तरफ ले जाना, मानवता इंसानियत की तरफ ले जाना, इसको ही यदि हम लोग अपने मजहब के तौर तरीक़ों में शामिल करें, अमल में लाएं उसको। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुछ भी कहना जो है, वो जो एक हदीस मुबारका है कि अगर सारे जंगल की दरख्त जो हैं वो कलम बन जाएं और समंदर जो है वो स्याही बन जाए और पूरी ज़मीन को जो है एक सफ़े की शक्ल दे दी जाए, तो भी आपको मुतालिक जो है आप तहरीर नहीं किया जा सकता। मैं अपने इस मुख्तसर बात को जो है वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक कॉल से शुरू करता हूँ, जो आप कहते हैं कि मैं उस शख्स के बारे में क्या कहूँ कि जिसके दोस्तों ने उसके फ़ज़ाइल को लोगों के खौफ से छुपाया और उसके दुश्मनों ने उसके फ़ज़ाइल को हसद की वजह से छुपाया। इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में ऐसे कार्य किए हैं जिससे आज भी हमें उनका एहसान महसूस होता है। हमें उनके लिए एक प्रकार से भक्ति क्रिएट होती है। हज़रत अली के बारे में तो न सिर्फ ये मुसलमानों में उनकी इज़्ज़त है या उनके प्रति आदर है, लेकिन बाकी के लोगों में भी दुनिया भर में लोग हैं जो उनकी मिसाल को मानते हैं, उनको पहचानते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? कई लोग होते हैं वो एक समूह के लिए इम्पोर्टेंट बन के रह जाते हैं सिर्फ। कई लोग होते हैं जो एक संप्रदाय के लिए
ज़्यादा महत्व के बन के रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पूरी ह्यूमैनिटी को इन्फ्लुएंस करके जाते हैं। उन्होंने चाहे फिर उन्होंने किसी रिलीजन की स्थापना की हो या वो किसी एक खास रिलीजन के साथ जुड़े क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो अपील होती है वो पूरी यूनिवर्सल बन जाती है। उनकी डेडिकेशन टू सर्विस, उनकी जो एक धर्मनिष्ठता थी, जो जिसको वो मानते थे, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने का जज्बा जो उनके अंदर था, जो अपनी एक जिस चीज़ के बारे में वो जिसकी चीज़ के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, उसके लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने की जो उनमें एक पराक्रम था, ये सारी चीज़ों को हम आज भी हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इरफान का, तसव्वुफ का जिक्र हो तो अली का नाम जहाँ है, सूफ़ी को वजद आ जाता है। कोई सूफ़ी महफिल ऐसी नहीं होगी जो अली अली के नाम पर हालत वजद में ना आ जाए। हम हर जगह अली अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की याद मनाते हैं, खुसूसन अलीगढ़ में। इसका सबब ये है कि अली अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में वो हदीस जो फ़रीक़ैन में शिया और सुन्नी तमाम उलमा ने नक़ल की है कि पैगम्बर ने फरमाया मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाज़ा। और अलीगढ़ क्योंकि शहर इल्म है, इस वजह से यहाँ हमेशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की याद होती रही। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत है जिसको वाक़ईन तारीख़ का और कायनात का मोजिज़ा समझना चाहिए। ऐसी शख्सियत शायद ही कोई हो जो इतनी मुतज़ाद सिफ़तों का मरकज़ हो। एक तरफ शुजाअत का वो आलम है कि आज भी अगर हैदर का नाम आ जाए तो रगों में खून दौड़ने लगता है, जंगों को फतह किया जाता है हैदर के नाम से। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि मैं वो हूँ जिसने मेरी माँ ने जिसका नाम हैदर रखा।